Hello friends, welcome to my channel Simply Analyzing Mathematics. My name is Jaspreet Kaur. पिछली वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर 8 क्लास 10th का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 को ही कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पिछली वीडियो में हो गया था, तो यू कैन रेफर फॉर द बेसिक्स of introduction to trigonometry previous video. Now we will begin with exercise 8.1 question number 2. So let's start. Question number 2 है, in the given figure find tan p minus cot r. figure हमें दे रखी है. Yes, this is the given figure for question number 2 in which angle Q is right angle triangle, PQ is 12 centimeter, PR is 13 centimeter, and what we have to find out is tan P minus cot R. So let us see what we can do. First of all, we have to find out QR. We will apply Pythagoras theorem. Let's apply Pythagoras theorem in triangle PQR to find out QR. हम PQR triangle में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं क्योंकि हमने QR की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट? सो लेट्स सी, इट इज हाइपोटेन्यूज इज दिस वन, द साइड विच इज ऑपोजिट टू एंगल Q, so it will be PR square is equals to PQ square plus QR square. This is Pythagoras theorem which we have applied in triangle PQR, which is right angled at Q. Now PR is 13, PQ is 12, and QR we have to find out. Yes, now 13 square is 169, 144 plus QR square. तो QR को यही रहने देते हैं, स्क्वायर को, और 169 माइनस 144, ये हमें मिल रहा है 25 का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू QR. हमने स्क्वायर रिमूव कर दिया और जब इक्वल्स टू के इस साइड आए तो हमें मिल गया स्क्वायर रूट. नाउ फ्रॉम हियर वी गॉट QR इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर. For question number 3, given is sin A is equals to 3 by 4, and what we have to find out? Cos A and we have find out QR, which is 5 centimeter. Now let us start. When we are talking about tan P, tan P के बारे में बात कर रहे हैं, तो tan P के ऑपोजिट साइड है 5 और tan P के एडजेसेंट साइड है 12. तो ऑपोजिट साइड हो गई परपेंडिकुलर और एडजेसेंट हो गई 12. So tan P will be QR upon PQ, which is equals to 5 upon 12. Here we got tan P. Now let's find out cot R. Cot R की वैल्यू है, now this is R. Cot R होता है to base upon perpendicular, but when this is R तो perpendicular और base change हो जाएंगे. ये 5 जो है वो QR जो है वो बेस बन जाएगा और PQ जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा. तो cot R which is QR upon PQ, right? Now which is equals to 5 upon 12. Now what we had to find out? Tan P माइनस कॉट आर, वैल्यूज पुट कर देंगे
5/12 minus 5/12, which is equals to 0. This is the required answer. Next we have question number 3. If sin A is equals to 3/4, calculate cos A and tan A. For question number 3, we are given with sin A is equals to 3/4 और हमें cos A और tan A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. we'll ड्रॉ कर देते हैं A B C. C A B C. ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर ली. A B C, B पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है और हमें साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/4. अब साइन ए, वी नो व्हाट इज साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. दिस इज परपेंडिकुलर, this is hypotenuse and this one is base, right? Now this is equals to given to us 3/4. sin A की वैल्यू हमें गिवन है 3/4 परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेन्यूज है 4, राइट? तो इनको हम एज इनकी लेंथ मान के चल पड़ते हैं. लेट 3 बी द लेंथ ऑफ साइड BC and 4 be the length of side AC. So let us calculate AB by applying Pythagoras theorem. तो Pythagoras theorem apply कर देते हैं. AC square is equals to AB square plus BC square. हमने AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. AC is 4 square, AB is not given, BC is 3 square. This square has come here now, which is 16. 3 square is 9. इसको यहाँ ले आते हैं और ये मिल गया हमें AB square. तो यहाँ से ये AB इधर लिख लेते हैं और ये हमें मिला 7 का स्क्वायर रूट. AB की वैल्यू हमें क्या मिली है? स्क्वायर रूट 7. We got AB as square root 7. Now we can find out cos A, which is equals to base upon hypotenuse, or you can say AB upon AC, which is equals to square root 7/4. This is the value of cos A, and let's find out tan A, which is equals to perpendicular upon base, and you can say BC upon AB, which is equals to 3/7. ये आपका required result. Question number 4, I would like to suggest you do it as homework. सिर्फ इतना सा चेंज करना है आपको. cot A. Let me read the question number 4. Given 15 cot A is equals to 8. Given 15 cot A is equals to 8. Find A and secant A. इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं? 15 को पहले तो इधर ले आइए. cot A is equals to 8/15. क्योंकि cot A है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो 8 जो हो गया बेस और 15 हो गया परपेंडिकुलर. तो आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और जब आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाए तो आप साइन ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, सीकेंट ए की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. अब आपके पास ट्राइंगल नहीं है तो हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं. ये लीजिए, ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया. क्योंकि ए गिवन है, हम इसको ABC नाम दे देते हैं. बी पर राइट एंगल बना देते हैं. तो cot A है 8, ये है 15. हाइपोटेन्यूज आपको फाइंड आउट करना है, और हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करके साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और सीकेंट ए
हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो वहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो टेक इट एज होमवर्क, आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। अब जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी आप होमवर्क कंसिडर करिएगा। गिवन सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सीकेंट थीटा गिवन है, तो उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सीकेंट थीटा हमें गिवन है, सीकेंट थीटा हमें गिवन है 13/12, और आपको बोला गया है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एक राइट एंगल ट्राइंगल मार्क कर लीजिए, राइट, ए बी सी, ये हो गया 90 डिग्री, इसको हम नाम दे देते हैं थीटा। अब हमें सीकेंट थीटा गिवन है 13/12, सीकेंट थीटा मीन्स आपको लर्न करनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सीकेंट थीटा नहीं तो आप ऐसे लर्न कर सकते हो, सीकेंट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सीकेंट थीटा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज तो है 13 और बेस है 12, तो ट्रिग्नोमेट्रिक पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको ए भी मिल जाएगा 5, और फिर आप बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सीकेंट थीटा गिवन है तो कोसेकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ से ट्राइंगल से 5, 12 और 13 को परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज यूज करते हुए फाइंड आउट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 we are going to solve. If cos A is equals to cos B, क्वेश्चन 6 में हमें क्या गिवन है, cos A और cos B both are equal, angle A and angle B are acute angles, and we have to show that angle A is equals to angle B। ये शो करने के लिए हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं। Let's take a right angle triangle A, B and C. Why I have taken A and B here? Because it is given that A and B are acute angles. Acute angles means they are less than 90 degree. So you cannot take any of these angles as 90 degree. So that is why I have taken angle C as right angle triangle. Now what? Let us find out what is cos A. Cos A will be this cos A. The side adjacent to angle is base and side opposite to angle is perpendicular. And this is hypotenuse. So cos A will be, this will act as base for A, angle A, which is equals to AC upon AB. Now cos B. What will be cos B? This is B angle. The side adjacent to angle B is base, so it will be BC upon AB. Right? Now we have given cos A is equals to cos B, which means AC upon AB is equals to BC upon AB. Now when we equate these two, AB and AB will go here, AB will come here, and then AB and AB got cancelled. From here we can say AC is equals to BC. Now what if in a triangle AC is equals to BC? Obviously, now which type of triangle is this? This is an isosceles triangle. Now if the opposite sides of a triangle are equal, then the opposite angles will also be equal. So from here you can write angle A is equals to angle B, angles opposite
two equal sides are equal. This is the reason behind the result. Angle A is equals to angle B. So here we have solved question number 6. Everyone, question number 7. Question number 7 is, if cot theta is equals to 7/8, evaluate 1 plus sin theta into 1 minus sin theta upon 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. तो इसको हम दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं. एक तो जो हम cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इसको कन्वर्ट कर लेंगे. यहाँ से ये हमें मिल जाएगा बेस, ये हमें मिल जाएगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट कर लेंगे और फिर साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करके हम उसमें इसमें पुट कर देंगे और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा कैलकुलेशंस के बाद. और दूसरा है आइडेंटिटीज अप्लाई करना. वो दूसरा मेथड है. इस क्वेश्चन में हम आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी अप्लाई कर सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज हम अपना बेसिक फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं जो कि है बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम. लेट्स सी. राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं. यहाँ पे थीटा मान लेते हैं और एंगल बी पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है और कॉट थीटा आपको गिवन है 7/8 means BC is 7 and AB is 8 and what will be AC? AC will be perpendicular square plus base square which is equals to 49 plus 64 which is equals to square root of 113. 49 plus 64 will give you 113. So here you got AC. अब ये वैल्यूज हमें चाहिए साइन थीटा. साइन थीटा विल बी AB upon AC and cos theta will be BC upon AC. Right? Now let us put the values. 1 plus 8 upon square root 113. 1 minus 8 upon 113 square root upon 1 plus 7 upon square root 113. 1 minus 7 upon square root 113. आप चाहो तो यहीं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अगर आप ध्यान से देखो तो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी. इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है. तो अप्लाई कर देते हैं विच इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर माइनस 8 अपॉन स्क्वायर रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन 113 का स्क्वायर. आप यहाँ भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप यहाँ भी सिंप्लीफाई करके ऐसे वैल्यूज पुट कर सकते हैं. रिजल्ट हम यहीं पर पहुंचेंगे. एंड देन हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं. 1 माइनस 8 is 64 upon 113. 1 minus 49 upon 113. 7 का स्क्वायर किया तो हमें मिला 49. 113 स्क्वायर रूट का स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर सॉल्व हो गए और यहाँ 8 का स्क्वायर किया तो हमें मिला 64 और 113 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर से हमें मिल गया 113. अब यहाँ पर 113 will act as 113 is LCM. 113 minus 64 upon 113 minus 49 upon 113. So 113 and 113 got cancelled और हमारे पास बच गया ये और ये. 113 minus 64 you will get 49 and 113 minus 49 you will get 64.
this is the first part of the question. Second part हमें बोला गया है to find out cot square theta. cot square theta 7/8 का स्क्वायर कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 49/64. तो सेकंड पार्ट ऐसे इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं. लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9. एक पार्ट हम कर लेते हैं, एक पार्ट आप एज अ होमवर्क कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 9. In triangle ABC, right angled at B, if tan A is equals to 1 upon square root 3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C. हम फर्स्ट पार्ट यहाँ सॉल्व करेंगे, सेकेंड पार्ट आप लोग एज अ होमवर्क सॉल्व करेंगे अपनी नोटबुक पर. क्वेश्चन नंबर 9 इज if tan A is equals to 1 upon square root 3, find sin A cos C plus cos A sin C. tan A BC upon AB is equals to 1 upon square root 3. इसमें हम कंसिडर कर लेते हैं BC is equals to 1 and AB is equals to square root 3. वैसे तो इन क्वेश्चंस में x मान सॉल्व करते हैं कि BC की वैल्यू 1x है यानी कि x है और AB की वैल्यू स्क्वायर रूट 3x है तो AC की वैल्यू भी x में ही आएगी क्योंकि इसको हम प्रॉपर रेशियो में मान के चलते हैं. इसको हम ये मान के चलते हैं कि इसकी फर्दर कटिंग नहीं हो सकती. कटिंग करने के बाद जो हमें मिला है वो ये मिला है तो इसलिए लेकिन हम थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ कर लेते हैं. x को रहने देते हैं, ऐसे ही मान लेते हैं BC इज इक्वल्स टू 1 और AB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3. दिस इज स्क्वायर रूट 3 एंड दिस इज 1 और AC की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. स्क्वायर रूट ऑफ AB स्क्वायर which is 3, square root of BC square which is 1, तो square root of 4 will give you 2. तो AC हमें मिल गया 2. अब हमने sin A will be, what will be sin A? Sin A will be 1 upon 2 and cos A will be square root 3 upon 2. Next we have to find out sin C and cos C. Sin C or cos C? Sin C. Now we have to deal with sin C. Sin C, then AB will become perpendicular, so it will be square root 3 upon 2 and cos C will be 1 upon 2. Put all these values in the formula and solve them and you'll have the required answer. Sin A 1 by 2, cos C sin A 1 by 2. Sin A और cos C में कोई भी साइन नहीं है तो we will not consider. It is understood that they are getting multiplied. Sin A is 1 by 2, cos C is 1 by 2 plus cos A is square root 3 upon 2 and cos A is square root 3 upon 2 multiplied by sin C which is square root 3 upon 2. So here you got 1 by 4 plus 3 by 4. Why 3 by 4? Square root 3 into square root 3 will give you 3. So which is equals to 4 upon 4 which is equals to 1 which is the answer. आज के लिए इतना ही. Thank you everyone. God bless.